Hello my dear friends, today we will discuss about quadratic इक्वेशन। मैं आज आपके लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट चैप्टर फ्रॉम क्लास 9th लेवल टू 12th लेवल एंड आल्सो जेई लेवल। ओके, सो इसमें हम वन शॉट में हम कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट चैप्टर क्लास 9 से लेकर 12 तक और जेई का भी। गॉट इट? सो बिना देरी किए हुए आइए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, what is the meaning of quadratic equation? Quadratic equation is second degree polynomial. Quadratic equation is also a polynomial in which power of x is or power of variable is what? 2. A quadratic equation is second degree polynomial in which in one variable written in this standard form. What is the form of standard form of quadratic equation? ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0. Reason is what? If a equal to 0, then no problem, just if a is equal to 0, then x into 0 0. So this is not quadratic polynomial or not quadratic equation. The quadratic equation converted into linear equation, bx plus c remaining only. Okay, so that's why we need to discuss quadratic equation. That's why we discuss what here a mention a not equal to 0. Now simply quadratic formula is what? Quadratic, अब बात आती है कि quadratic equation मिल गया, हम उसके quadratic equation सबसे पहली बात आती है रूट्स, जीरोज़, सोल्यूशन क्या होते हैं, रूट्स उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन क्या होते हैं। सोल्यूशन मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरोज़ क्या होते हैं, जीरोज़, रूट्स और सोल्यूशन, ऑल थ्री नेम्स आर सेम ना। सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन क्या होंगे, जीरोज़ क्या होंगे और रूट्स क्या होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स निकालने के एक होता है फैक्टर फॉर्म, जो कि वो सिंपल होता है, सब लोग जानते हैं, और एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला सब लोग जानते हैं, बट few people knows about who give quadratic formula. Sridharacharya, right? That's why we call quadratic formula also known as Sridharacharya formula. Got it? And that formula is what? If alpha and beta are two roots of this quadratic equation, if alpha and beta are two roots of this quadratic equation, alpha beta is equal to formula directly minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, where a is what? Coefficient of x square, b is what? Coefficient of x, c is what? Constant. Got it? Just substitute the value here, we will get value of here plus and minus two things. So if you will take plus, you will get alpha, और हम जब माइनस चूज करेंगे तो हम क्या पाएंगे? बीटा, which means minus b plus b square minus 4ac upon 2a will get alpha, and if minus then beta. Okay, for example हम देखते हैं कि इसी बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर माइनस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, दिस वन इज क्वाड्रेटिक और नॉट? यस। विच फॉर्म? जस्ट कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो वैल्यू ऑफ a इज व्हाट? 2, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू -5, वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 3. जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर. सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू b minus b, so minus plus b plus minus root b square is what? 25 minus 4 into 2 into 3, 4ac upon 2a, a is what? 2. So this is equal to 5 plus minus under root 25 minus 4 into 2, 8, 8 into 3, 8 into 3, 24, 25 minus 24, 1 upon 4. And we know 1 means what? Under root 1 is 1, so 5 plus 1, 6 upon 4, 6 upon 4, and 1 is 5 minus 1, 4 upon 4, so 4 upon 4 is what? 1. So root is what? 3 by 2 and 1. There are two roots, one is alpha, one is beta. Alpha equal to 3 by 2, beta equal to 1. Next one is discriminant. Next one is what? Discriminant and nature of roots. Discriminant and nature of roots. अब बात आती है डिस्क्रिमिनेंट की, या नेचर क्या है रूट्स का। मीन्स हम बिना सॉल्व किए, एक तो प्रॉब्लम होगी कि सॉल्व कर लिया हमने कंप्लीट की रूट्स क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समटाइम्स वी आर अनेबल टू सॉल्व, और समटाइम्स कैलकुलेशन इज वेरी लेंदी. इफ कैलकुलेशन इज वेरी लेंदी, और इन एनी केस वी आर अनेबल टू सॉल्व, और if just asking nature of roots, what we need to do? Just no need to solve, no need to find complete alpha beta value. If they are asking nature of roots, just find d. What is d? D for discriminant, right? And value of d is what? B square minus 4ac, again where b is what?
coefficient of x, and a is what? Coefficient of x square, and c you know already constant. So if d greater than 0, then alpha and beta are always two roots, right? In quadratic equation there are always two roots, one is alpha, one is beta. So if discriminant is greater than 0, roots are real and distinct, discriminant equal to 0, real and equal, which means if discriminant is equal to 0, which means b square minus 4ac value is equal to 0, then we will get two roots, but that roots are equal, like alpha alpha or beta beta, which means 1 1 2 2, like this. If d is less than 0, roots are imaginary, are also known as complex conjugate roots. Okay, अगर d लेस देन 0 हो गया तो रूट्स क्या होगा? इमेजरी होगा, विच मीन्स अगर आपको पता हो तो आयोटा 2 आयोटा और 1 प्लस माइनस 2 आयोटा रूट्स ऐसे होंगे, इमेजरी फॉर्म में, रियल नहीं होंगे. गॉट इट? अब आइए इसी पे क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, विच मीन्स k की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के पास इक्वल रूट होंगे, राइट? जस्ट इक्वल रूट मीन्स व्हाट? सेकंड कंडीशन. Second condition means b square d equal to what? Equal root already given. Whenever equal root means d equal to 0. If d is equal to 0, which means b square minus 4ac equal to 0. And b is what? b equal to 2. So 2 square minus 4 into a is what? k. c is what? 1. This is equal to 0. b square minus 4ac is equal to 0, which implies 4 minus 4k is equal to 0, which implies 4 equal to 4k, which implies k equal to 1. So for which value of k this quadratic equation has equal roots? K equal to 1. Got it? Good. Next one is Vitas relation. This one is very very important. Vitas relation is most good concept and very important, very easy also. Sometimes again we are unable to solve or we need to save time. We don't have time to solve complete alpha beta value, right? Then what we will do? Just there is direct formula for sum and product of roots, which means if alpha is roots one root and beta is other root, अगर अल्फा हमारा फर्स्ट रूट है, बीटा अगर सेकेंड रूट है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी, तो अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, विच मीन्स अगर दोनों रूट्स को ऐड कर देंगे क्या मिलेगा और दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा. क्लियर? सो फार्मूला क्या है कि अगर दोनों रूट्स को ऐड करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए मिलेगा. माइनस बी अपॉन ए मीन्स व्हाट? माइनस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो माइनस बी क्या है? इसका माइनस एंड ए. क्लियर? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट करने के बाद दोनों रूट सी अपॉन ए के इक्वल होगा. क्लियर? सो अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जस्ट दोनों को ऐड करिए. अगर माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है ठीक है, अदरवाइज ऑप्शन डिस्कार्ड. और अल्फा इंटू बीटा करने पे सी अपॉन ए आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ऑप्शन डिस्कार्डेड. क्लियर? अब आइए देखते हैं क्वेश्चन इस पर. इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. दोनों रूट्स को ऐड करेंगे तो हमेशा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा. प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों इक्वल होगा सी अपॉन ए के. गॉट इट? सी इज constant and a is coefficient of x square, b is coefficient of x and a is coefficient of x square. now आइए देखते हैं क्वेश्चन. इस पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. क्या दिया हुआ है? अगर नहीं दिया है तो आप सपोज कर सकते हैं कि कोई अल्फा बीटा रूट्स है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सपोज कर लीजिए अल्फा बीटा रूट्स है. क्लियर? सो लेट आर गिवन इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप अल्फा बीटा की जगह पे x1 x2 भी ले सकते हैं, x1 x2 भी ले सकते हैं, ओके, a b भी ले सकते हैं, वट एवर यू वांट. जस्ट इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा टू रूट्स होते हैं, उन दोनों रूट्स को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, आपको पता है. और यहाँ पे वैल्यू पूछ रही है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की. अब आपके पास एक क्वेश्चन चांस है कि आप कंप्लीट अल्फा बीटा वैल्यू फाइंड करें, उसके बाद अल्फा बीटा सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे. बट वी हैव शॉर्टकट मेथड. व्हाट? just if they are asking 1 upon alpha plus 1 upon beta, this value is nothing by addition rule, beta plus alpha upon alpha beta, and alpha beta we know already. what alpha plus beta is what? minus b upon a. minus b upon a means what? b is here, b equal to minus 7, a equal to 3, c equal to 2. substitute here alpha plus beta minus b, minus plus 7 upon minus b upon a 7 upon 3 divided by alpha into beta c upon a. c upon a means 2 upon 3, 3 and 3 cancel.
So this value is what? 7/2. This is answer. Got it? Very simple. Good. Next, difference of roots. ये दोस्तों बहुत ही important है. This one is very important. Difference of roots is very important and not given in simply in normal books, right? So अब ये क्या है? डिफरेंस ऑफ रूट्स ये है कि आपने एक देखा कि सम एडिशन पे क्या आएगा और प्रोडक्ट पे क्या आएगा. अल्फा प्लस इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए आ रहा था, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए आ रहा था. अब बात करते हैं व्हाट अबाउट अल्फा माइनस बीटा. Difference of root means we can take alpha minus beta also, beta minus alpha we can take also, both are same, right? So if alpha modulus of alpha minus beta, we are using modulus here. Why? Since alpha minus beta also correct and beta minus alpha also correct. Okay, so if again alpha or beta क्या है, alpha or beta, let alpha and beta are two roots of quadratic equation, then alpha minus beta is equal to always under root d upon magnitude of alpha minus beta is equal to what? Under root d upon modulus of a. Modulus of a means अगर a निगेटिव होगा तो पॉजिटिव ही लिखेंगे यहाँ पे. गॉट इट? पॉजिटिव इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस लगा रखा है. अगर मॉडुलस नहीं लगाएंगे तो अल्फा माइनस बीटा रूट डी अपॉन ए होगा सिर्फ. क्लियर? अब आइए देखते हैं ये कैसे आता है. इसका प्रूफ आपको चाहिए? प्रूफ चाहिए आपको? प्रूफ भी देख लेते हैं. प्रूफ कैसे होगा? आपको पता है कि अगर इफ़ alpha beta are the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then we know by using quadratic formula alpha beta is equal to what? Minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. So alpha minus beta equal to what? Or alpha equal to what? Suppose alpha is equal to minus b, एक रूट प्लस होगा एक माइनस होगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. एंड बीटा इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? इसको इस माइनस कर देंगे, राइट? तो क्या मिलेगा आपको? माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी लिख सकते हैं रूट डी अपॉन 2a माइनस, अब माइनस में क्या होगा? माइनस माइनस प्लस साइन, सो प्लस बी अपॉन 2a प्लस माइनस माइनस साइन प्लस हो गई ना, अंडर रूट डी अपॉन 2a. सो माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी अपॉन 2a कैंसिल. अल्फा माइनस बीटा क्या हुआ? अंडर रूट डी अपॉन 2a, 2 कैंसिल विच इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट डी अपॉन a. So this is the proof. Alpha minus beta magnitude is what? Or modulus is what? Under root d upon modulus of a. Clear? I hope आपको क्लियर हो गया होगा प्रूफ. नेक्स्ट, अब देखते हैं, इसमें क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे. इसी के बाद एक सिमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये भी इंपॉर्टेंट है. सिमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ये है. इसको यूज करते हैं हम क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, जेई में जनरली, और ओलंपियाड एग्जाम क्लास 10th ओलंपियाड में, राइट? सो अब क्या है? अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. आपको इसकी प्रूफ की ज़रूरत हो बस ए माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करिए, यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करिए, प्रूफ हो जाएगा. यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा. इफ़ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये सारे फार्मूलाज कहाँ से आ रहे हैं? सिर्फ ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब यूज करने पे. क्लियर? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ये 2 अल्फा बीटा बैलेंस करने के लिए. अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, सॉरी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा. क्लियर? आइए इस पे देखते हैं बेस्ड एक क्वेश्चन. फाइंड द डिफरेंस ऑफ रूट्स फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ये किस क्वेश्चन पे बेस्ड है? किस कॉन्सेप्ट पे? सिंपल, इस पे डिफरेंस ऑफ रूट्स. सो डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप? सिंपली एज वी नो ऑलरेडी, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट डी अपॉन ए मॉडुलस ऑफ ए.
अंडर रूट डी मीन्स व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 6 4 24 4ac अपॉन ए इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ ए 1 विच इज इक्वल टू 25 माइनस 24 1, सो दिस इज डिफरेंस ऑफ रूट्स 1 कंप्लीटेड। अदरवाइज आपको अगर नहीं पता ये फार्मूला तो आप पहले अल्फ़ा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे, देन डिफरेंस बता पाएंगे। आपको अगर ज़रूरत हो चेक कर सकते हैं, इसका रूट 3 और 2 होगा, डिफरेंस 1 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात आती है फॉर्मेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रूट्स दिया है कि अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करिए। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा 2 रूट्स गिवन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास 10th में हम खूब करते हैं। जस्ट सिंपली क्या करते हैं, फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। एक्स स्क्वायर ले लीजिए आप, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। और एक दो रूट्स पे ऐसा नहीं जरूरी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं। आप इसमें से कोई, इस इक्वेशन में कोई भी के मल्टीप्लाई करेंगे, के बिलोंग्स टू रियल नंबर, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगी जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और सॉरी अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स होंगे। सिंपली ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्वाड्रेटिक, दो रूट्स पे अल्फ़ा और बीटा रूट्स गिवन है तो उस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही होगी। इस पर इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं, जस्ट के मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए कंप्लीट इक्वेशन से। क्लियर। आइए देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। 2 and 5 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन, 2 and 5 are roots of quadratic equation given, find the quadratic equation. So we have formula directly, x square minus alpha plus beta is what, 2 plus 5 x plus alpha into beta 2 into 5 equal to 0. So required quadratic equation is what, x square minus 7x plus 10 is equal to 0. We got required quadratic equation. अगर आपके पास फार्मूला है तो तुरंत आप एक 30 सेकेंड में, विदिन 30 सेकेंड्स आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, ये नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा, हायर लेवल पे आता है, जेई लेवल में समटाइम्स आपको मे बी ओलंपियाड में मिल जाता है, बट दिस वन इज़ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। इफ़ यू नो फार्मूला वेरी इजी, अदरवाइज लिटिल बिट टफ, राइट, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, टू मच टाइम। इफ़ यू डोंट हैव दिस फार्मूला ना, इट विल टेक टू मच टाइम टू सॉल्व, राइट। सिंपली आप जानते हैं, ये डायग्राम पे भी आते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करता है, quadratic equation always represent a parabola. What represent? A parabola. Quadratic equation or quadratic function always represent a parabola. And parabola two types होते हैं, होते ज़्यादा हैं और हैं पैराबोला बहुत टाइप्स के, जनरली 4 टाइप्स के होते हैं, बट फंक्शन में पैराबोला 2 टाइप्स के होते हैं, एक अपवर्ड, वन डाउनवर्ड। सो इफ़ वैल्यू ऑफ ए, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0, देन पैराबोला ओपन अपवर्ड। एंड अगर ए लेस देन 0 होगा तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, विच मीन्स अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला का ऐसे होगा, अगर ए लेस देन 0 होगा तो ऐसे होगा, इस टाइप से। क्लियर। अब ये तो क्लियर हो गया पैराबोला कैसा होगा, ए ग्रेटर देन 0 होगा तो कैसा होगा, ए लेस देन 0 होगा तो कैसा होगा, और वैल्यू ऑफ ए के लिए दो ही पॉसिबिलिटी है, इधर लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। इफ ए इक्वल टू 0 दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, लीनियर, देन लाइन हो जाएगा। क्लियर। सो अब बात आती है कि इफ ए ग्रेटर देन 0 देन दिस वन इज व्हाट, पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। क्लियर। अपवर्ड पैराबोला का तो ऊपर साइड बाउंडेड नहीं है, जा रहा है कहीं तक, इनफाइनाइट रीजन तक जा रहा है, बट नीचे क्या है, यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिलेगी, किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू, वर्टेक्स क्या होगा, इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी मुझे -b/2a पे, वेयर b अगेन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड d इज डिस्क्रिमिनेंट। सो वर्टेक्स क्या होगा, इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, -b/2a एंड वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू इज व्हाट, -d/4a। क्लियर। सिंपली मिनिमम वैल्यू इज -d/4a, किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, -b/2a। सो वेन एवर एनी वन आस्किंग आफ्टर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक फाइंड द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला और फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, जनरली आस्किंग अबाउट मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, just simply -d/4a is minimum value. Got it?
क्लियर। नेक्स्ट, अब a लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, अगर a लेस देन 0 होगा तो नीचे साइड माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम अटेंड कर रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट में मिलेगी, -b अपॉन वर्टेक्स क्या होगा, इस वर्टेक्स में मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, और दैट वर्टेक्स कोऑर्डिनेट इज व्हाट, -b अपॉन 2a -d अपॉन 4a, विच मीन्स x की वैल्यू क्या होगी, -b अपॉन 2a, और इस -b अपॉन 2a वैल्यू ऑफ y -d अपॉन 4a, विच मीन्स मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अगर a लेस देन 0 होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, -d अपॉन 4a। सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx वेयर fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। सो अगर हम आपको ये फार्मूला नहीं पता है डायरेक्ट कि मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे अटेंड करती है, -b अपॉन 2a, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -d अपॉन 4a। अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो बहुत टाइम लगेगा, अदरवाइज बाई यूजिंग फार्मूला तुरंत कर सकते हो आप। कैसे होगा, बाई यूजिंग फार्मूला जस्ट -d अपॉन 4a, -d अपॉन 4a मीन्स व्हाट, -d अपॉन 4a, विच मीन्स माइनस ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब माइनस b स्क्वायर क्या होगा, 16 माइनस 20 अपॉन 4 इंटू 1, ये क्या आएगा, -60 माइनस 20 -4 अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन 4, विच इज इक्वल टू 1। सो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। लेट अल्फा बीटा विद द रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हियर कंडीशन इज व्हाट, लैम्डा बिलोंग्स टू z, एंड दे आर आस्किंग सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, वन इक्वेशन गिवन, and one restriction is what, lambda belongs to z, asking about sum of possible values of lambda, sum of all possible values of lambda. So simply we know this one is what, 1 by, this one is given what, given equation, okay, inequality. So squaring both side, squaring complete inequality, what will get, 1 by 4 less than equal to beta minus alpha square less than equal to 9 upon 4, and we know in modulus we can modulus of x square equal to x square, so 1 by 4 less than equal to, and in modulus we can exchange, so this one is alpha minus beta whole square less than equal to 9 by 4, so 1 by 4 less than equal to, we know symmetric identity, alpha minus beta whole square equal to what we can write, alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta less than equal to 9 upon 4, and now this is equal to what, this is equal to 1 by 4 less than equal to alpha plus beta, we know already, alpha plus beta equal to minus b upon a, minus b upon a means what, 20 upon 12 whole square minus 4 into alpha beta 3 lambda upon 12 less than equal to 9 upon 4, which is equal to 1 by 4 less than 20 upon 12 means 4 3 12 4 5 20, so 25 upon 9 minus 12 cancel, lambda less than equal to 9 upon 4, so 1 by 4 दोनों 25 upon 9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 25 upon 9 less than equal to minus lambda less than equal to 9 by 4 minus 25 upon 9 minus 25 upon, this one is minus 25 upon 9 by 4 minus 25 upon 9. Now this one equal to our 36 4 9 minus 9 4 36 100 less than equal to minus lambda less than equal to 36 4 9 36 81 minus 100 upon 36. So this one is what, and here minus lambda, we need what, lambda, so multiplying complete inequality by minus sign, and whenever we multiply it by minus sign, inequality reverse. So this one is what, 100 minus, or 9 minus 100 is what, minus 91, and minus 91 after multiplying by minus sign 91 upon 36, inequality चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 91 यहाँ पे हो गया, एंड हियर 81 माइनस 100 माइनस 19 माइनस माइनस प्लस 19 अपॉन 36. अब हमको लेमडा की वैल्यू क्या हो रही है, लेमडा की वैल्यू ऑफ लेमडा इज व्हाट,
वैल्यू ऑफ लेमडा लाइज बिटवीन 19/36 91/36 टू 19/36। सो 91/36 और 19/36 के बीच में इंटीजर कितने आते हैं? हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 91/36 एंड 19/36? So there are two integers only, 1 and 2. There are two integers, 1 and 2, and 1 plus 2 is what? Sum of all possible values of lambda. 1 plus 2 equal to 3. So which option is correct? Which option is correct? Simply first option is correct, 3. Thank you. और आपको ये वीडियो अगर पसंद आए, आपने कुछ सीखा है इससे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।